पार्टिकल्स। तो इसमें जो हमने पहला लेक्चर कल क्लास में स्कूल में लिया था उसमें हमने बेसिक जो है इसका इंट्रोडक्शन लिया था। अभी वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आज हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। दीज आर द थिंग्स विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियर नोटेशन, तो वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। बेसिक थिंग है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ओके, तो नेक्स्ट थिंग बेटा इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका ओ लेवल्स वाला है, बट वी विल स्टडी हियर अगेन क्विकली। विल लुक अपॉन द मॉडल्स ऑफ द एटम्स। सो मॉडल ऑफ द एटम बेसिकली डेट्स बैक टू 500 BC। डेमोक्रेटस जो है उसने बताया था कि भाई देयर इज़ अ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल थिंग दैट वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर, और 500 BC में उन्होंने इसको एटम का नाम दिया था। फिर लेटेस्ट जो है वो थॉमसन डाल्टन 1803, इसने बताया था कि भी एटम्स जो है ये टाइनी हार्ड सफियर्स हैं। ही वाज द फर्स्ट वन इन 18th सेंचुरी हु टोल्ड के एटम्स आर लाइक हार्ड सफियर्स, राइट। और उसके बाद उसने ये बताया कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विच हैव सेम मास, बट of course, different elements are made up of different atoms. Then moving on, J.J. Thomson discovered electron in 1897. This is a real-time picture of J.J. Thomson in his lab, and he found that there is a negatively charged particle present in the atom. That is very, very small part. This was a breakthrough in the discovery for subatomic particles, because this was the first electron was the first subatomic particle that was discovered. Second was proton, and third was neutron. Pudding model, again, it was proposed by J.J. Thomson, and he told about the model of atom that it is a hard sphere which is positively charged, like all this brown surface is, let's say, positive charge, and then there are static electrons in it, static electrons, and they are randomly embedded over there. So according to him, the electrons are at rest and randomly distributed inside the atom. Okay, so this is called plum pudding model. The next one, which is the current model, which is Giger and Marston alpha particle scattering experiment, or alpha particle scattering experiment simply, or Rutherford atomic model as well. You must have studied that in O levels. These were Geiger and Marsden. They were the one was the student, and the other one was the worker of Rutherford. And in 1909, they performed an experiment using alpha particles, and they bombarded alpha particles on very thin gold foil, very, very thin gold foil, and then they cancelled away the plum pudding model, because according to plum pudding model there was no empty space in the atom. Okay, so these were the results, and let's look upon this model. So first of all, this is, let's say, a vacuum chamber. So vacuum is there. There is vacuum means that there is no air. Why there is no air? Because they use alpha particles, and alpha particles can be stopped by the air. So using vacuum, so that alpha particles may not stopped by air, because if vacuum, then alpha particles can easily move through that. Okay, so they use a lead container, and then they place a radioactive source, which is the alpha source, मतलब एक radioactive substance उन्होंने रखा जिसमें से alpha particles निकलते थे, and the alpha particles were focused on a gold foil. This is the gold foil, very thin gold foil, and then this green one, this green thing is actually the fluorescent screen. Fluorescent screen means there's a chemical powder now. When alpha particle will hit the fluorescent screen, then it will light up over there. A spark will produce, and when a tiny speck of light or spark will produce, so they will come to know that okay, alpha particles are coming over here. So let's say these black arrows, these are the alpha particles, so they are coming from there, and this is in cold foil. So what happened is, let me erase just this. Okay, what happened is that when the alpha particles will start moving through the gold foil, the result was opposite to the plum pudding model. The result was actually the plum pudding model stated that there is no empty space in the atom. So Rutherford was aiming that okay, if there is no empty space in the atom, then the alpha particles would not cross this thin gold foil, so they will hit and they will bounce back. ठीक है, ये रदरफोर्ड ये एज्यूम कर रहा था। अच्छा, अब हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजरे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट गुजर गए। अच्छा, बिफोर वी गो दैट, ये थोड़ा सा इसका ये है कि लार्ज एंगल के ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डेविएट हुए आफ्टर पासिंग थ्रू दिस गोल्ड फॉयल। मतलब ये प्लम पुडिंग ये था कि भाई दे वुड नॉट बी एबल टू मूव थ्रू दैट, लेकिन उसके बिल्कुल रिजल्ट उसके बिल्कुल अपोजिट हुए। ना सिर्फ अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल में से गुजर गए, बल्कि जो रिफ्लेक्ट बैक हुए वो बहुत कम रिफ्लेक्ट बैक हुए। मेजॉरिटी पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल, एंड माइनॉरिटी और वेरी लिटिल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। ओके, सो अब क्या ऑब्जर्व क्या हुआ, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड? सो लेट्स से, okay, so let's say this is the alpha source and then a thin metal foil. So alpha, उन्होंने देखा कि जी most of alpha went straight through. So virtually all the alpha particles went straight through gold foil. Went straight through नहीं, actually they deviated at very small angles. हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि deviated at very small angles. Deviated at small angles.
Okay, so alpha particles actually went straight through or they deviated at very small angles, but the main thing is that they passes through this thin metal foil. Okay, then a few alpha particles were deflected through a small angle. मतलब जो ओरिजिनल उनकी जो डायरेक्शन थी वो ये वाली थी, तो इससे ये वाला जो एंगल था दिस इज लेस देन 90 डिग्री. So few alpha particles were deflected at very small angles which is less than 90, and surprisingly only 1 in 10,000 alpha particles were deflected back. जो वो सोच रहे थे कि भाई प्लम पुडिंग अगर ठीक हुआ तो सारे वापस आने चाहिए, लेकिन सिर्फ एवरी 10,000 अल्फा जो जा रहे थे, जो हिट कर रहे थे गोल्ड फॉइल को, उसमें से 9,999 उसमें से पास कर गए और ओनली वन अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक. ओके, तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, दीज थ्री वर एक्चुअली देयर ऑब्जर्वेशंस व्हेन दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. So they observed these three things. So first, most of alpha particle went straight through. Second, few alpha particles were deflected through very small angle. And third, only one out of 10,000 were deflected backwards. Okay, so then Giger and Marston, who performed this experiment on instruction of Rutherford, they went back to Rutherford and told him that, sir, we have observed these three things, that all the alpha particles surprisingly went straight through gold foil, and very little were deflected at small angles less than 90, and only one out of every 10,000 were deflected back. So Rutherford then concluded three main results about the structure of atom. So this is another explanation. This is the atom, and then in the center, the red dot is actually the nucleus. So what is happening is that, number one, why the deflections are happening? Deflection occurs because there is a force between a charged nucleus and the positively charged alpha particle. Surprisingly, they knew that alpha is there because Henry Becquerel has discovered radioactivity in 1901. So the alpha was already discovered, and it was already known that alpha is having a positive charge as well. This was already known. This is the known thing to them. And very surprisingly, at that time before this experiment, no one knew that there is a nucleus in the atom. Everyone knows that atom is there, everything is made up of atom, but by that time the definition was कि atom भाई, atom is indivisible. ये किसी को नहीं पता था कि atom के अंदर क्या है. तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसमें जब ये डिफ्लेक्शन हुआ तो उसने कहा ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज. तो उसको वो लॉ पता था कि लाइक चार्जेस रिपेल. उसने कहा अच्छा, अगर ये अल्फा रिपेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिफ्लेक्शन अकर बिकॉज देयर इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज न्यूक्लियस. तो उससे उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है तो एटम के अंदर भी एक चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो इससे फिर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था. ओके, तो ये यहाँ से आप देख लो, ये जो ऑरेंज वाले हैं ये सारे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई वो न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजर रहे हैं. और ये जो ब्लू वाले हैं ये क्यों नहीं, इनको क्या हुआ है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से गुजर रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर मूविंग स्ट्रेट थ्रू. ओके, बैकवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों हुए? बैकवर्ड डिफ्लेक्शन इस वजह से हुए कि ओनली वन आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल, जब वन अल्फा 10,000 जा रहे थे तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है इस एटम को इसके न्यूक्लियस के पास गया. अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो भी हीलियम न्यूक्लियस है, बेसिकली वी नो कि अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस. तो ये दोनों न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जब आपस में हिट इन्होंने किया, जब अल्फा पार्टिकल ने एटम के न्यूक्लियस को हिट किया या उसके करीब गया तो वहां से रिकॉइल होकर रिपेल होकर वो वापस आ गया. अब चूंकि एटम बहुत बड़ा है, लेट्स से अगर ये इतना बड़ा एटम है तो इसके अंदर न्यूक्लियस एक छोटा सा है, ऑफ कोर्स बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उस एम्प्टी स्पेस में से जो आगे जाएंगे, जो करीब से गुजरेंगे वो रिपेल होंगे क्योंकि उसमें फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, करीब वाले रिपेल होंगे और जो दूर वाले हैं वो स्ट्रेट गुजरेंगे. अब जो एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके ऊपर आएगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है वो वापस जो है वो आएगा. तो दैट्स वाई ओनली वन आउट ऑफ 10,000 रिफ्लेक्ट्स बैक, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज भी बहुत छोटा है और अल्फा का साइज भी बहुत छोटा है. अब रदरफोर्ड ने फिर इसको कंक्लूड किया बेस्ड on the results of Giger-Marson experiment. Ernst Rutherford suggested that atom consists of tiny positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons. ये बात फिर उसने बताई कि भाई ऐसा सीन होता है कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, कोर है. न्यूक्लियस उस टाइम नहीं उसने कहा था, उसने कोर कहा था, और साइड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली जो चीज़ है, ये रदरफोर्ड ने हमें बताई थी और ये आपके आगे जी लॉर्ड रदरफोर्ड. और सरप्राइजिंगली रदरफोर्ड जो है ये भी लॉर्ड था. एक लॉर्ड कैल्विन थे, वो भी थर्मल फिजिस्ट थे, और एक ये लॉर्ड रदरफोर्ड. ओके, next, how the results supported the Rutherford model. Again, the relatively small number of reflections indicate that most of the atom is empty space. मतलब large जो small deflection where large number of alpha particles went straight through, उससे पता लगा कि भाई empty spaces होती हैं. नंबर टू, बैकवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ तब इस वजह से हुई कि भाई न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल, तो इससे न्यूक्लियस का चार्ज पता लगा. प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो उसमें जो है वो बैकवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो उसमें नहीं हुए थे. बट दिस इज नॉट ओवर मैटर ऑफ कंसर्न ओवर हियर, कि वो डिफरेंट चीज़ है. अच्छा, अब हम जाते हैं, अच्छा इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. तो कंक्लूजन में बेटा वो थ्री थिंग्स थी. नंबर वन, एक ये था कि एम्प्टी स्पेस इन एटम, दिस थिंग. सेकंड थिंग इज पॉजिटिव चार्ज कोर जिसको ज़ाहिर न्यूक्लियस कहा गया. और थर्ड जो इसका रिजल्ट था वो था टाइनी डेंस कोर, कि जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत डेंस है. डेंस का मतलब है छोटा है सारे, क्योंकि वन आउट ऑफ 10,000 आर डिफ्लेक्टिंग बैक. तो ये जो है ये रिजल्ट्स थे, और ये इसकी बेस पर जो है वो ये वाला जो एटॉमिक मॉडल है इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया. ओके, अब ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. प्रोटॉन
प्रोटॉन जो है वो P11 होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 0-1 होता है, न्यूट्रॉन जो है वो 1-0 होता है। ये न्यूक्लियर नोटेशन होती है ना, एक्स जो है वो पार्टिकल या कोई भी एलिमेंट की सिंबल होती है, ऊपर जो है वो हम उसका मास नंबर लिखते हैं और नीचे जो है वो हम उसका चार्ज नंबर लिखते हैं। आगे बेटा रिलेटिव मासेस हैं, रिलेटिव चार्ज हैं, फिर किलोग्राम में मास है, फिर चार्ज है, ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर काउंट करना है, तो बिल्कुल एबीसी है केमिस्ट्री की, यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, उसके बाद आइसोटोप्स का भी हम डिस्कस कर चुके थे। स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू डिवाइड चार्ज इन कूलम डिवाइडेड बाय मास इन किलोग्राम, तो आपके पास चार्ज टू मास रेशो जो है वो आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो लार्जेस्ट स्पेसिफिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मास सबसे कम है, तो जिसकी मास सबसे कम होगी ऑफ कोर्स उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आई जस्ट थॉट इट कि हम चूंकि ये पढ़ ही रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। पार्टिकल ट्री मतलब जितना हमारा मैटर है ना इस यूनिवर्स में, वो सब इन चीज़ों से मिलकर बना है। इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो कि यूनिवर्स को जिसने बनाया हो, मतलब इनके अलावा यूनिवर्स में और कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग सॉलिड लिक्विड गैस वट एवर इज देयर, दोज थिंग्स कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स विच आर शोन हियर। अच्छा, इसमें लेप्टॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि भाई ये किसी और चीज से मिलकर नहीं बने, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। जिस तरह वो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ना, ऐसे बेस यूनिट्स क्या होती हैं, विच आर फंडामेंटल बेसिक नॉट मेड अप ऑफ एनी अदर यूनिट्स। बिल्कुल इसी तरह लेप्टॉन्स जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें बेटा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर पॉजिट्रॉन आ जाता है, फिर म्यून आता है, एंटी म्यून आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, ये जो म्यून और एंटी म्यून है ये हमने नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके, जो हमने क्लास में देखा था। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रॉन्स हैं, एल फॉर लेप्टॉन एंड एल फॉर लाइट, तो दीज आर लाइट पार्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन जो है वो हैवी पार्टिकल्स हैं, एच फॉर हेड्रॉन एंड एच फॉर हैवी। और हेड्रॉन की टू टाइप्स होती हैं, मीजॉन्स और बैरियॉन्स। अब बैरियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये बस ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बेसिकली बैरियॉन्स हैं, और बैरियॉन्स का मतलब है ये हेड्रॉन्स है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर हैवी, दैट्स व्हाई दे आर हेड्रॉन्स। उसके बाद दूसरा ग्रुप मीजॉन्स का है, लेकिन ये मीजॉन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है मतलब। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज फोर्स। ये जो बोजान है, दीज आर द फोर्स कैरियर्स। ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, ये बोजान्स की वजह से होती है। जी, इनका नाम है आपको बस एटलीस्ट पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। ग्लूऑन, वर्चुअल फोटॉन, डब्ल्यू प्लस बोजान, डब्ल्यू नेगेटिव बोजान, जेड नेगेटिव बोजान, हिग्स बोजान। हिग्स बोजान को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसमें पार्टिकल्स में गॉड पार्टिकल, और ये बहुत थोड़ी टाइम के लिए विजिबल होता है। अच्छा, ये जो बोजान सारे हैं ये सर्न लैब है, स्विट्जरलैंड में लैब है, फिजिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न में है, वहां पर ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये डिस्कवर हुए हैं। ओके, एनीवेज, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस। इन आवर सिलेबस आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का पता होना चाहिए, और इधर से बस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन इसका पता होना चाहिए। ओके, लेट्स जस्ट लीव दिस एंड मूव फॉरवर्ड. Okay, so well, all the particles like proton, neutron, and electron, they have several properties or qualities. What is the property? The first one is mass. Every particle is having a mass. They have charge. Then they have rest energy, जिसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे। रेस्ट एनर्जी क्या होती है, रेस्ट मास भी होती है। स्ट्रेंजनेस हम नहीं करेंगे, बेरियम नंबर इज नॉट देयर, लेप्टॉन नंबर इज नॉट देयर, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। अच्छा, उसके बाद दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी पार्टिकल इज हैविंग अ एंटी पार्टिकल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश अलोंग द टॉप। लेट्स से अगर एक प्रोटॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल जो है वो एंटी प्रोटॉन होगा। अगर न्यूट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो अच्छा, सरप्राइजिंगली जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, इसलिए उसका एंटी पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिट्रॉन। सो दीज आर पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो एंटी पार्टिकल है उनकी मास सेम होती है एज दैट ऑफ पार्टिकल, और उनकी रेस्ट एनर्जी भी सेम होती है। रेस्ट एनर्जी का मतलब ये होता है कि व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट इट इज नॉट मूविंग, हाउ मच एनर्जी इट इज हैविंग। When the particle is not moving, how much energy it is having, that is called rest energy और rest mass energy। आगे एक स्लाइड आएगी जिसमें मैं पूरी इसकी डेफिनेशन एंड एवरीथिंग लिखूंगा, इसको कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। देखो, जिस तरह भी लेट्स से आप लोग रेस्ट पे बैठे हुए हो, तो आप ये तो नहीं कि आप रेस्ट पे हो तो आप में एनर्जी नहीं होगी, रेस्ट पे होने के बावजूद आपके अंदर एनर्जी है। तो अब वो जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे रेस्ट मास एनर्जी, कि भाई यू आर रेस्टिंग एंड स्टिल यू हैव सम एनर्जी। ओके, व्हाट अबाउट एंटी पार्टिकल्स? एंटी पार्टिकल्स हैव सेम मास बट अपोजिट चार्जेस, और ये इलेक्ट्रॉन वगैरह इसको आप छोड़ दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सो द ओनली थिंग वी नीड टू नो, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, इन दोनों की मास सेम होती है और इनका चार्ज डिफरेंट होता है। सो वी विल से कि मास इज सेम बट चार्ज क्यू इज डिफरेंट और ऑपोजिट, दैट्स इट। Okay, if you look below, proton is particle and anti-proton is its antiparticle, so it is bar. Proton charge is +1 and anti-proton is -1, but they have same charge. And then you will leave this baryon, lepton. And rest mass, of course, we will have to calculate rest mass. Okay, then neutron, anti-neutron, it is charge is 0, 0 and mass still is there. And then electron is E and positron is, let's say we can write E negative over there, just the bar. This is not the negative, this is the bar actually. And electron is -1 and positron is +1 and their mass is exactly the same. Okay.
Let's move forward. We quickly have to go through this. There are four fundamental forces. I already told you in previous lectures: strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force, and the force of gravity. We already learned this. Strong nuclear force. This acts between the hadrons. Hadrons mean nucleons, and you know nucleons are protons or neutrons. Okay, and this is here. This is positive. So here it is repulsive, and here it is negative. So it is attractive over here. So we have already learned yesterday that the range of this is up to 4 femtometer or 3, you can say 3 femtometer as well. So if it is less, if the distance between the particles are less than 0.5, then it is repulsive. And if it is 0.5 to 4 femtometer, then it is attractive. What does this mean? कि भाई, if two protons get very close together such that the distance between them is less than 0.5 femtometer. femto आपको पता है ना, -15 होता है, डेटा शीट में लिखा होता है, femto is -15. तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, अगर ये बहुत क्लोज हो जाए न्यूक्लियस के अंदर, उनका डिस्टेंस 0.5 फेमटोमीटर से कम हो जाए, तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी ये रिपल्सिव हो जाएगी. ठीक है, रिपल्सिव का मतलब है कि ये फोर्स इनको दूर भेजेगी, इनको क्लोज नहीं आने देगी. लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.5 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, लाइक डिस्टेंस इज मोर देन 0.5 फेमटोमीटर, फिर बेटा ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव हो जाएगी और ये इनको आपस में अट्रैक्ट करके रखेगी. ओके, then this strong nuclear force is actually responsible for combining all the nucleons together, ताकि न्यूक्लियस जो है वो एक जगह पे रहे. कल हमने देखा था कि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो एक दूसरे से अवे जाते हैं. ग्रेविटी की फोर्स भी होती है बट वो वीक होती है. तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सब पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है. तो दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स विच एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. ये जो नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड बाय ग्लूऑन पॉइंट्स, इसको आप छोड़ दो. ग्लूऑन्स जो है ये पार्टिकल्स होते हैं. मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्लूऑन्स के थ्रू लगती है. ग्लूऑन इसलिए ग्लू से निकला है, ग्लू का काम चीजों को जोड़ना होता है, इसलिए ग्लूऑन पार्टिकल कहा जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट्स ऑन ऑल पार्टिकल, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके हैपेंस बिकॉज ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द रिपल्सिव फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स ओनली एंड इट इज अनलिमिटेड रेंज, इट इज इनफाइनाइट रेंज इसकी होती है और ये फोटॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, लेकिन इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें ये पता हो. Gravity acts on all particles having the mass and it is transferred by gravitons. Graviton जो है ये भी special particles होते हैं, like अर्थ की सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, तो अर्थ is emitting billions trillions of photons, gravitons all the time. तो वो ग्रेविटॉन एक hypothesized पार्टिकल है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट की थ्योरेटिक है कि भाई ग्रेविटॉन्स आर देयर, अर्थ में से ग्रेविटॉन पार्टिकल्स निकलते हैं इनविजिबल, जिस तरह एयर इनविजिबल है, जिस तरह हमारी साउंड इनविजिबल है, इसी तरह ये ग्रेविटॉन्स इनविजिबल है और ये आते हैं और जिस चीज को हिट करते हैं उसको फिर अर्थ की तरफ ये खींचते हैं. तो ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटॉन्स के थ्रू एक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. अच्छा, अब यहाँ से हमारा सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये स्टार्ट हो रहा है. मोस्ट यहाँ से अगर जिसने नोट्स बनाने हैं वो यहाँ से साथ साथ नोट्स भी बना ले, और इसकी वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा. फोटॉन्स. अच्छा, फोटॉन्स जो है बेटा ये क्या चीज है? photons जो है these are packets of energy in electromagnetic radiation, so that's how we actually define it. So these are the packets of energy in electromagnetic radiation. For example बेटा, अब ये सन है और सन जो है वो let's say is emitting radiation. 7 टाइप ऑफ रेडिएशन सन इमिट करता है. कौन कौन सी 7 टाइप्स हैं? रीड माय इनर वैल्यूज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस. ग्लासेस पहले लिख दिया, चलो एक्सरे ग्लासेस. तो ये रीड माय इनर वैल्यूज यूजिंग एक्सरे ग्लासेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज. अब ये जो रेज हम तक आती हैं, वी आर हियर ऑन अर्थ, तो किस फॉर्म में आती हैं, कैसे आती हैं? मतलब अभी तो हम सिर्फ सॉरी हम ये कहते हैं कि भाई ये बस रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन आ कैसे रही है? एक्चुअली फोटॉन्स आर कमिंग. ये जो रेडिएशन इनके अंदर फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, टाइनी पैकेट, और ये टाइनी पैकेट वो सारी एनर्जी लेकर आ रहे होते हैं और इनके रास्ते में जो भी चीज आती है द टाइनी पार्टिकल फोटॉन हिट दैट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू दैट. जिस तरह आप बाहर अगर दिन में धूप में बैठे हो आज, तो आपने देखा होगा कि आप यूल भी आपने थोड़ा वार्मर फील किया होगा धूप में जब बैठे. तो क्यों वार्मर फील किया है? क्योंकि जो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, वो हीट लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं हीट के, और जब आपकी बॉडी को हिट कर रहे हैं तो वो पैकेट एक्सप्लोड हो रहा है और वो हीट आपको दे रहा है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटॉन्स. डेफिनेशन इज ऑफ कोर्स इट्स पैकेट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अच्छा, अब क्योंकि 7 रेडिएशन है बेटा, तो 7 रेडिएशन में एक यूनिक चीज क्या है कि एवरी रेडिएशन इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ. हर रेडिएशन की डिफरेंट वेवलेंथ है और हर रेडिएशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है. ये बात तो आपको पता ही होगी. कितनी है ये ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, जस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई एवरी रेडिएशन इज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ. रेडियो ऑफ कोर्स इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड गामा इज हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. सो द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? फिक्स्ड. सो अ सिंगल फोटॉन कैरीज अ सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जिस तरह एक अगर रेडिएशन है रेडियो वेव्स, उसके अंदर अगर बिलियंस ऑफ फोटॉन्स हैं तो हर फोटॉन की एनर्जी सेम होगी. लाइट रेज है तो एक लाइट रे के अंदर बिलियंस ऑफ फोटॉन्स हैं तो हर फोटॉन की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होएगी उस लाइट के अंदर. ओके, इसको क्वांटाइज कहते हैं. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आइंस्टाइन ने. ये आइंस्टाइन ने कहा था
और ये मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हुई थी 20th सेंचुरी से, जो कि आइंस्टाइन 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट है, तो उसने ये कहा था कि यार ये जो ये फोटॉन भी आइंस्टाइन ने ही कहा था, मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन, दीज वर द टू फिजिस्ट जिन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और फिर आइंस्टाइन ने कहा था कि अच्छा चलो उसको फोटॉन कह देते हैं, क्योंकि उसने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो उसकी बेस पर फिर उसने ये डिस्कवर किए थे, आइंस्टाइन ने ये फोटॉन डिस्कवर किए थे, और उसी ने इसका नाम फोटॉन्स रखा था। तो आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि लेट्स से अगर रेडियो वेव है और साथ हमारे पास एक्स रे है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से किसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? विल एनीवन आंसर? इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेडियो की ज्यादा है या एक्स रे की ज्यादा है? कैन समवन आंसर? नहीं, एक्स रे की ज्यादा है बेटा। एक्स रे की, क्योंकि देखो जो रेडियो वेव्स हैं वो इस तरह लॉन्गर होती हैं और एक्स रे बिल्कुल शॉर्टर होती हैं, इसीलिए एक्स रे बहुत डेंजरस है। देखो हम कहते हैं ना एक्स रेज आर वेरी डेंजरस, गामा रेज आर डेंजरस, अल्ट्रावायलेट आर डेंजरस। व्हाई दे आर डेंजरस? बिकॉज दे आर हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी, वो चीज यही यहाँ से इस बात से भी ये जो है ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके ओके, तो देखो यहाँ से प्रूव हो जाता है ना कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी हाई होगी। ओके, सो ये उसने कहा था आइंस्टाइन ने। तो चूंकि ये बात उसने कही थी, इसलिए फिर ये हुआ कि एक इसने इक्वेशन भी बना दी इसकी। और इसमें जब इक्वेशन बनी तो ई प्रोपोर्शनल टू एफ है ना, ई प्रोपोर्शनल टू एफ, तो उसने कहा कि भाई देखो ई इज इक्वल टू कांस्टेंट इन टू एफ है। और उसने कहा कि ये जो कांस्टेंट है ना, इसको एच कह दिया उसने, एच। और सरप्राइजिंगली देखो उसने अपने नाम पे ये कांस्टेंट नहीं रखा, उसने आइंस्टाइन कांस्टेंट नहीं रखा। ये कांस्टेंट एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, क्योंकि मैक्स प्लैंक उसके एरा का साइंटिस्ट था जिसने ये काम असल में शुरू किया था। आइंस्टाइन ने साथ उसकी हेल्प की थी, और आइंस्टाइन ने फिर उसका मैक्स प्लैंक का आइडिया लेकर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया था और फोटॉन डिस्कवर किए थे। और ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी पार्टिकल नेचर होती है, उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जिनको फोटॉन्स कहते हैं। दैट्स वाई इस कांस्टेंट का नाम एच है, और एच जो है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डाटा बुकलेट में लिखी होती है। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। So this is universal constant in the whole universe. Everywhere the Planck's constant will remain the same. Okay, so बेटा ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है E is equal to HF, ये तो दिस मेक सेंस कि हमने अभी किया है। How we can write this as hc over lambda? You know in waves you must have studied के v is equal to f lambda होता है। आई होप आपको पता होगा। और अगर लाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो स्पीड को c से लिख देते हैं, c is equal to f lambda। और यहाँ से फिर ये हुआ कि f जो था उसका एक्सप्रेशन निकल आया और वो था c over lambda। तो दैट्स वाई उन्होंने ये किया कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में इधर f की जगह जो c over lambda लगा दिया, तो यू गॉट द इक्वेशन E is equal to hc over lambda। So this is most important equations where E is energy in joule, h is Planck's constant, and then c is speed of light, and lambda is the wavelength of that light. I hope this is clear here. अच्छा, अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? दे विल टेल यू अबाउट सम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स, और आपको कहेंगे कि फोटॉन की एनर्जी निकालो। तो दिस इज वेरी सिंपल, अगर वो फ्रीक्वेंसी बताएंगे तो आप बस उस फ्रीक्वेंसी को प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट एनर्जी। अगर वो आपको वेवलेंथ देंगे तो फिर आप उस वेवलेंथ को प्रोडक्ट ऑफ एच सी से डिवाइड कर लोगे, एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन। नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आगे बाद में। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। अब एवरीवन विल सॉल्व इट, और वो इसको उसमें चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट पेपर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 490 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस। ये एक सरफेस है जिसके ऊपर 90 डिग्री पे जो है वो लाइट आके हिट कर रही है, और इसकी वेवलेंथ 490 नैनोमीटर है। द पावर ऑफ लाइट इज 3.6 मेगावाट। द लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, मतलब सारे फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब आपने एन फाइंड करना है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन 2 सेकंड। तो कह रहे हैं कि 2 सेकंड में कितने फोटॉन्स जो हैं वो इस सरफेस के ऊपर उन्होंने हिट किया है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ी सी इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ कि आपको पता है पावर विच इज 3.6 मिली वॉट, और आपको पता है टाइम। इसका मतलब है कि आपको ये पता आप लगा सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो हिट हुई है। सो यू नो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। सो पावर इज 3.6 इंटू 10⁻³ एंड टाइम इज 2, सो यू मल्टीप्लाई दैम, सो दिस इज 7.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, ओके। जूल, आई गेस समवन हैज शेयर्ड द आंसर। नो, ओके ओके। सो ये आपके पास आ गई एनर्जी चूज में। अब एक जो वन फोटान है उसकी एनर्जी निकाल लो कितनी है, वन फोटान एनर्जी। अच्छा बेटा, वन फोटॉन एनर्जी के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, चूंकि उसने वेवलेंथ दी हुई है। तो एच है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी है 3 इंटू 10⁸, राइट। और देन यू डिवाइड दिस विद लेमडा।
और लैम्डा कितना है 490 नैनोमीटर। ठीक है, सो व्हेन यू डू दिस तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, कैसे, लेट मी क्विकली डू द कैलकुलेशन। मे बी आप लोग भी कर रहे हो, आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन करें, सारा काम मुझसे ना करवाएं। ठीक है, सो दिस इज 4.06 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अच्छा बेटा, ये अब एक फोटान की एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है जो सारे फोटान्स आए। तो बेटा हमारे पास एक यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं कि भाई अगर वन फोटान की एनर्जी 4.06 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है, तो एक्स फोटॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो 7.2 है। मतलब अगर टोटल एनर्जी 7.2 हो तो फिर आपके पास फोटॉन्स कितने होंगे? तो 7.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय योर आंसर। सो एक्स जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए वो 1.77 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स है। आई होप आपने किसी ने ये आंसर निकाला होगा। क्यों भाई, बताओ जिसने आंसर जिसका निकला है, किसी ने आंसर निकाला है ये वाला? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं आता। ओके ओके ओके, इसको कर लो बेटा, इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट इसकी। ओके ओके, राइट। देखो बेटा, फर्स्ट थिंग इज कि आपने पहले ये एनर्जी निकालनी थी कि भाई हम टोटल एनर्जी, वो जो लाइट आ रही है वो टोटल एनर्जी कितनी, क्योंकि पावर गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम निकाल लेंगे कि भाई टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है। फिर हम कहेंगे अच्छा इसमें तो फोटान से, तो एक फोटान की एनर्जी कितनी है, एच सी ओवर लेमडा। तो एच जो है ये डाटा बुकलेट में लिखा होता है, सी भी डाटा बुकलेट में है, और ये लेमडा उसने हमें दिया हुआ है कि भाई ये 490 है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि एक फोटान जो आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है। तो फिर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई अगर एक फोटान के पास इतनी एनर्जी है तो अगर ये टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है तो फोटान टोटल होंगे कितने। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बेटा सब लोग ये इस फार्मूला को ज़रा आपने नोट कर लिया होगा। ये बाद में मैं आपसे ये स्लाइड्स भी शेयर कर लूंगा और इसकी ज़रा वीडियो भी शेयर कर लूंगा। लेकिन अभी भी आप साथ साथ काम करें, अभी चूंकि आप सब माशाल्लाह हैं क्लास में, तो आपको अभी अंडरस्टैंडिंग आपने अभी डेवलप कर लेनी है। अभी बाद में नहीं जाना कि अच्छा हम बाद में वीडियो देख लेंगे या बाद में नोट्स देख लेंगे। अभी चूंकि आप ये टाइम लगा रहे हो तो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इट। इफ समवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क बेटा। मोहम्मद मूसा बेटा बताओ, आपको समझ आ रही है बात की, ये चीज़ समझ आ गई है फोटोन वाली? कुछ ना बेटा, आप बताओ। ओके okay, so let's move to next topic. We are left with 10 minutes. Okay, so the next topic is a very important equation. You must have seen this equation somewhere. E is equal to mc square. Can someone quickly tell me about it? ये क्या है? सर ये जो मैथ्स मेरे ख्याल से जो मैथ्स लॉस हो जाता है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है उस स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं। Okay, okay बेटा, this is Einstein's energy mass equation. दिस इज आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। आइंस्टाइन ने इतने काम किए थे कि हम अगर उनको गिनने बैठे तो गिन ही नहीं सकते कि कितने काम उसने किए हैं। फोटॉन उसने डिस्कवर किया, उसके बाद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का उस मेन काम आइडिया उसने दिया। फिर ये इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द फेमस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्वेशन। According to this relation, mass and energy are related by this. Like E is energy, M is mass, C is speed of electromagnetic radiation, which is speed of light, speed to 10⁸. He said that mass can be converted into energy, and energy surprisingly can be converted into mass as well. So energy and mass have this relation, E is mc square. Okay, so it is through this equation that matter can be produced, this is very surprising, or destroyed. ये ऐसे है कि आप एक पेपर है उसको हम we put that paper on fire, तो वो after some time it will be converted into light energy, heat energy, and the remaining would be ash particles. तो इसका रिवर्स ये है कि वो जो एश पार्टिकल्स हैं अगर हम उसको लाइट और हीट दे दें तो वो दोबारा मास में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज एक्चुअली द रिवर्स प्रोसेस। बट ये बड़ी चीजों के साथ नहीं हो सकता, मैक्रो बिगर लेवल पे नहीं हो सकता, दिस ऑलवेज हैपन एट स्मॉलर लेवल, वेरी स्मॉलर सब एटॉमिक लेवल्स। ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन, फेमस कन्वर्जन। जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है मेरे साथ उन्हें ये याद होगा कि हमने शुरू में कन्वर्जन्स पढ़ी थी, कन्वर्जन्स, और उसमें मैसेज की कन्वर्जन, एनर्जी की। तो जो एनर्जी की कन्वर्जन थी उसमें वी स्टडीड दिस वन, between relation between joule and electron volt and relation between joule and mega electron volt. अब द क्वेश्चन कम्स कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी होती है फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए जूल में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दिस इज द रिलेशन, 1 ev is 1.6 × 10⁻19 जूल। ओके, okay, I have to tell you one more thing in this, which is rest mass. What is rest mass energy of particles? This is a very simple concept. If the particle is at rest, then its
energy at that time is called rest mass energy. How do we calculate that? So we say that energy associated with particles at rest is called rest mass energy, and you calculate it through this equation, E is equal to mc square. M naught, आप में से किसी ने नहीं पूछा ये m naught क्यों लिखा हुआ है. M naught is actually the rest mass. It is the mass of object when the object is at rest. ये क्या बात हुई? ये भी आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि when objects are moving at very high speed then their mass changes. ठीक है, ये आल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी वेरी फेमस थ्योरी. तो उसके मुताबिक ये था कि भाई जब आप बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हो तो मास उस चीज़ की बढ़ जाती है. तो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. तो रेस्ट मास क्या होती है? रेस्ट मास इज द मास व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग. इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. अच्छा, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास क्या है, तो आप इलेक्ट्रॉन की मास 9.11 × 10⁻³ और उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एनर्जी. वो जूल में आएगी. जूल में आने के बाद आप उसको इस कन्वर्जन इसके थ्रू आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे. ओके, next thing is inhalation and pair production. Inhalation, what is inhalation? We have seen कि भाई there are two things. One is particle, we have discussed this before, and other one is antiparticle. And we have seen कि यार उनकी जो mass है वो same होती है, लेकिन जो उनका charge है वो opposite होता है. सो इनहेलेशन के लिटरल मीनिंग होते हैं खत्म होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना. तो व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कोलाइड, दे इनहेलेट ईच अदर एंड आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और वो एनर्जी क्या होगी? फोटॉन्स. तो मतलब वो 2 फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे देखो, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन आए. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, एंटी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है. जब दोनों आए, इन्होंने हिट किया तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब वो खत्म हो गया, मैटर डिस्ट्रॉयड, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैमा फोटॉन्स. दिस इज गैमा फोटॉन, गैमा रे फोटॉन्स. सो ये जो है वो 2 गैमा रे फोटॉन्स बने, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना. और ये उसको मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, क्योंकि इनकमिंग भी ऐसे ही थे तो आउटगोइंग भी ऐसे ही है. तो इनहेलेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कोलाइड, देन देयर masses इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो अब कितनी एनर्जी बनेगी, उसके लिए हम करते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, हम इनकी मैसेज को ऐड कर लेते हैं, लाइक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की मैसेज को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल मैस आएगी. इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब प्लस वी नो वन मोर थिंग, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ नॉट, या एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. तो ये जो फोटॉन्स बनेंगे इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में भी वो हमसे पूछेंगे. तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने एक फोटॉन की, ये जो फोटॉन प्रोड्यूस हुआ है या गैमा रे प्रोड्यूस हुई है, अगर हमें वो कहेंगे बताओ भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, पहले तो mc स्क्वायर से ई निकालोगे और फिर आप ई इज इक्वल टू एच एफ नॉट करोगे और ई को आप एच से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो एफ नॉट आ जाएगा, जो उस वेव की या उस गैमा रे की फ्रीक्वेंसी होगी. अच्छा, अब ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला, E इज एच एफ, वो मैंने नीचे भी खैर लिख दिया था. सो E इज एच एफ, दिस इज द फॉर्मूला विच यू कैन यूज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैमा रे. ओके, अभी इसको फिलहाल इस एग्जांपल को हम छोड़ देते हैं और आगे के हमने और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और अभी हमारे पास टाइम भी just 2 minutes हैं. तो let me tell you something more about inhalation and pair production. अच्छा, inhalation and pair production ये दोनों opposite हैं. Inhalation we just have seen कि two important interaction, these are actually the interactions between the particles and antiparticles and photons. तो inhalation और pair production ये दो. Inhalation तो we just have seen कि when a particle meets its corresponding antiparticle, the two inhalate. Inhalation is defined as when a particle meets its corresponding antiparticle, they both are destroyed and their mass is converted into energy in the form of 2 gamma ray photons. Again दोबारा बता रहा हूँ, the two most common particle antiparticle pairs कौन कौन से हैं? प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन इनहेलेशन होगी या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनहेलेशन होगी. अच्छा, तो इस पूरी इनहेलेशन वाले प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए 2 फोटॉन्स बनेंगे. ये वो क्वेश्चन पूछता है कि 2 क्यों बन रहे हैं, एक क्यों नहीं बन रहा. आप कहोगे इन ऑर्डर टू कीप मोमेंटम कंजर्व, ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और मोमेंटम कंजर्व रहे, इसलिए 2 फोटॉन बनेंगे. उसके बाद एज विद ऑल कोलिजन द मास एंड एनर्जी स्टिल कंजर्व. हाँ, ये भी है, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी और मास कंजर्व रहती है, लेकिन इस पर हमने कल वाली क्लास में फिर दोबारा जो है वो बात करनी है इंशाल्लाह. So the minimum energy of one photon after annihilation is the total rest mass energy of one of the particles. मतलब जब एक एक जो गैमा रे फोटॉन है उसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी होगी, जितनी एक पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी है वही एनर्जी उस फोटॉन की भी होगी. एज इट इज हियर कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहे हैं और चूंकि ये दोनों भी अपोजिट आ रहे हैं इसलिए गैमा रे भी अपोजिट जाएंगी ताकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड देयर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी.